نیازی سرکار نامنظور تاکہ قرارداد منظور جن کے منظور وہ ہتھ متھے کن تپو رد تھی نیازی سرکار یہ دعوت خطاب گرمی میں صبح کھا اتنی خلقہ کٹھی آئے چیئرمین صاحب کے ویلکم کرن ائی چیئرمین صاحب کے عوامی مارچ میں ساتھ ڈیڑھ لائے تاجی وری مہربانی چیئرمین بلاول بھٹو مو اگونے چاہو تہی عوام دی جنگا جگہ سیاسی جنگا ٹھیک ہے تہاں دے ہتھن میں کوئی بارود بکونے ہتھ متھے کرے بجھائیو خالی ہتھن نے تپوچو اسی نیازی کے لڑکاروں تھا تو ہتھیں خالی اسی ظالمن تاوڑوں تھا وڑھر دس جو ہتھیں خالی اسی ظالمن تاوڑوں تھا امید ہے یقین ہے کہ کھٹنداسو کھٹر نسجو حیات ای موت جو مسئلو چھیڑے حیات ای موت جو مسئلو چھیڑے اساں کھے نٹرے جا رہے ہو حیاتیات جینداسو جے موت آئیو تملنداسو اے اساں کھے جیلے نے کھان کام نٹے جا جو ہیوا قوما جگہ ایواری جی تحریک آئیں درجی آئیں اتاں سبرن جائیں تا جیل اتاں جا موت مقدر صوب حیاتی موت مقدر صوب حیاتی جیل اتاں جا جیمن ساتھی ننگا بیرو چھولیو گھاٹ کوب اتاں جا اوچا گھاٹ کوب اتاں جا اوچا گھاٹ آئیں نیازی کے بھجائیں دو چھاجرہ مہنگائی کے خلاف بھجائیں دو جن نیازی گئے تو وزیر اعظم کے اوچھا پھچن تانچھا پھچن اوچھا پھچن تو کو سبئی گرجی چو سزا میں ہکڑوئی نارو بلاول 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 چلو ٹھیک ہے ریکارڈنگ بند ہوگا ریکارڈنگ بند کیو ہاں تاں چیئرمین صاحب کے وزیر اعظم کرے چھڑیو پر چیئرمین صاحبہ جی بھیڑ تہاں جی نیانی اکس بیر دی آسی ساتھ جی بدھائیو تو وزیر اعظم بلاول چلو وزیر اعظم بلاول صاحب تھی دو پر انہا ہکڑو شرطا قبولا انہا اسلام آباد ہنگو آرادی مارچ جو حصہ تھی وہ قبولا ہاتھ ماتھے کریں بجھاؤ قبولا اسلام آباد یہ دعوت خطاب یا تو تائیں مجھے لیڈر انہیں قوم مستقبل کی زمان
عوامی رہنما اور لیڈر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مورو کے عوام السلام علیکم. جی اے بھٹو. شاید آپ کو اندازہ ہوا ہوگا تھوڑا سا ہمارا گلا بیٹھ گیا ہے آج، تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ زور نہ دوں اور آہستہ آہستہ آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں مورو کے عوام کا شکر گزار ہوں. ناظرہ آج کا استقبال کے لیے، مگر مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں 2018 کے انتخابات کے رات کے اندھیروں میں یہاں پہنچا تھا تو جس تعداد اور جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا تھا وہ بھی تاریخی تھا. میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارا امیدوار کو ووٹ دے، آپ نے میرا ریکویسٹ مانا اور سارے دھاندلی اور ہتھ کنڈے کے باوجود تقریباً سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نوشہرہ فضلوں سے جتوائے. جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو ملک مشکل میں ہے، پاکستان کے عوام پریشان ہیں، مزدور محنت کر رہا ہے، محنت کش محنت کر رہا ہے، مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں مل رہا. ہاری کسان کو فصل کی قیمت نہیں مل رہا. ذرائع ملک میں جہاں زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، وہاں کسان وہاں ہاری بھوکا پیٹ سو رہے ہیں. اس ملک کے نوجوان جو اس ملک کے مستقبل ہیں، وہ اس وقت بہت ہی مشکل میں ہیں. تعلیم حاصل کرتے ہیں، 2 3 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا. ہمیشہ سے اس ملک کی غریب عوام کی خدمت کی ہے. حکومت میں آگے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدور، کسان، طالب علم، غریب طبقات، اقلیت، خواتین کے لیے کام کیا ہے. قائد عوام جب حکومت میں آیا تھا ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ دیا تھا، اور جو قائد عوام کا حکومت تھا تو روٹی، کپڑا اور مکان عوام کو دلوایا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
कायदे अवाम के उसूल पर सियासत करती थी, कायदे अवाम के मंशूर पे अमल करती थी, और बीबी का हुकूमत होती थी तो रोटी कपड़ा और मकान मिलता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौड़ के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। इमरान का इस हुकूमत में इमरान का नया पाकिस्तान रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान, मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान। पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि ये तब्दीली के नाम पे तबाही है, ये तब्दीली नहीं तबाही है। नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। महंगा बिजली, महंगा गैस, महंगा पेट्रोल, महंगा चीनी का बहरान, आटा का बहरान, तेल का बहरान, गैस का बहरान, और हमने घबराना नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करता हूं, आप सबको सुर्ख सलाम पेश करता हूं कि आपके एक दो दिन के मेहनत के नतीजे में, आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। 10 रुपया कम तो किया पेट्रोल की कीमत में। कप्तान जो झुकने वाला नहीं था, कप्तान ने तो बिजली की कीमतों में भी आपको देख के डर के बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए का कमी किया है। मगर ये क्या समझते हैं? क्या ये समझता है कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? हम इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते? आपको तो मालूम है कि हमारा मार्च निकलने से पहले, हमारा मार्च का आगाज होने से पहले इन्होंने तो 12 रुपए का इजाफा किया था ना पेट्रोल में, तो अब 10 रुपया कम कर रहे हैं। तो ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले इन्होंने तो बिजली को 6 रुपए का इजाफा किया था बिजली का, अब 5 रुपए कम करके हमें बेवकूफ बनाना चाह रहा है। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। इंशाअल्लाह ताला ये तो आपका 2 दिन की मेहनत का नतीजा है ना। जब हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, जब हम मिल के सफर करते हैं, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करते हुए, वसेब से गुजरते हुए जीटी रोड में दाखिल होते हैं, और जीटी रोड से होते 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 हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो तब तक वो कितना कम करेगा पेट्रोल और बिजली की कीमत?
साथियों, मईशत इस किस्म का ड्रामा बाजी से नहीं चलता है। मईशत को चलाना है, पाकिस्तान का मईशत को तरक्की करवाना है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही सोच के मईशत को चलाया है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, हारी खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। ज़राए मईशत को, ज़राअत पे अगर ये लोग तवज्जो देते, ज़राअत पे तवज्जो देते, तो पाकिस्तान की मईशत आज तरक्की कर रहा हो। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो पाकिस्तान में गंदम भी बाहर से मंगवाया जाता था, चावल भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, चीनी भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। एक साल के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने एक मुल्क जो बाहर से मंगवाता था एक्सपोर्टर बना दिया था। एक साल के अंदर ही अंदर जहां हम बैरूनी मुल्क का गंदम खरीद रहे थे, हम पाकिस्तान का गंदम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान का चीनी बाहर बेच रहे थे, पाकिस्तान का चावल बाहर बेच रहे थे। इसी तरीके से जब वक्त का हारी खुशहाल था तो मुल्क का मईशत तरक्की करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? आते हुए सबसे पहला डाका किसानों पे, हारियों पे, जमींदारों पे, ज़राअत के शोबे, आते हुए आप पे डाका मारा गया। सारे के सारे इनपुट्स तो वैसे ही महंगे हैं, जो पूरे मुल्क में महंगाई है, पेट्रोल का, बाकी सब चीजों का, तो किसान का भी इनपुट्स भी महंगा हो गया है। फिर ऊपर से पानी का तकसीम में नाइंसाफी करके आपको नुकसान पहुंचाता है। टिड्डी दल का हमला हुआ, आपको याद है? टिड्डी दल का हमला जब इमरान के वक्त पे हुआ तो उन्होंने बहुत देर रिएक्ट किया था। शहीद बीबी के दौर में इसी टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो पता नहीं कहां से, ईरान से, दूसरे ममालिक से जहाज मंगवाए गए थे कि टिड्डी दल का हमला का, माकर का हमला का बंदोबस्त करवाया जाए और किसानों को, हारियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर वो खुद बहरान पैदा करते हैं। ये पहली बार मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं कि हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारा हारी को मजबूर किया गया कि ब्लैक मार्केट से खाद, यूरिया और DAP का बंदोबस्त करना पड़ा। ये पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसे नहीं देखा। खान साहब ने आपके पानी पे डाका मारा है, खाद पे डाका मारा है, ज़राअत के पूरे शोबे पे डाका मारा है, पाकिस्तान की मईशत का पैरा गरक कर दिया है। और अब वक्त आ गया है कि हम इस शख्स से हिसाब लें। वक्त आ गया है कि हम कठपुतली से हिसाब लें। मैदान में निकली हैं, पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहे हैं। हमारा जमहूरी हक एहतजाज करना, हम एहतजाज कर रहे हैं। आपके मसाइल, आपके इश्यूज को अवाम के सामने रख रहे हैं और जिदोजहद कर रहे हैं कि जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी शख्स को निकाला जाए। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। इसलिए कि आप इस मुल्क के अवाम के लिए जिदोजहद कर रहे हो, आम आदमी के लिए जिदोजहद कर रहे हो, और वो जो शख्स इक़्तिदार में है, जो कुर्सी पे बैठा है, जो आप पे मुसल्लत किया गया है, वो ना आपका सोचता है, ना आम आदमी का सोचता है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने में वो पूरा का पूरा तवज्जो दे रहा है। कभी
मीडिया पे पाबंदी, तो कभी अदालत पे हमला, तो कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। इस बुज़दिल में तंकीद सुनने का हौसला नहीं है। कल उसने मुल्क से खिताब किया। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आज़म साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तंकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाफी कर रहा है। इतना बुज़दिल आपने कभी जिंदगी में देखा है? मुल्क का सरबराह टीवी पे आके लिटरली रोना पड़ा शुरू हो गया कि जंग ने जो मेरे साथ किया, जंग ने जो खातूने अव्वल के बारे में लिखा। अरे जनाब, आपके साथ तो आपको याद नहीं है कि मीडिया पे पाबंदी था कि आपने मुनसिफ रिपोर्टिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग करना है। मीडिया पे पाबंदी था कि आपके बारे के खिलाफ लिखने का इजाजत नहीं था, बोलने का इजाजत नहीं था। हम आपकी मुआशी पॉलिसीज पे बात करते थे, आपका आमराना पॉलिसीज पे बात करते थे, तो हमारा आवाज को काटा जाता था। सदर जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका से कि चले नहीं। इतना आप डरपोक थे। आपने पूरा मीडिया का कंट्रोल किया। इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तनकीद हो रहा है वो ज्यादा है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा आजाद मीडिया पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी हमेशा बोलने की आजादी में यकीन रखते हैं। जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो तू खुद हो। झूठों का बादशाह तो इमरान खान है। उसका जो पूरा सियासी जिंदगी का सफर है वो झूठ पे मुबनी है कि किसके बारे में ज्यादा झूठ बोला जा सकता है, किसको ज्यादा जोर से गाली सुना सकते हो। आपको अंदाजा ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। आप जरा देखें कि उसी जियो और उसी जंग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में हमारा क्या हाशर किया था। आप किस तरीके से हमारा किरदार कशी करते थे, सदर जरदारी का किरदार कशी करते थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का किरदार कशी करते थे, कायदे अवाम भुट्टो शहीद का किरदार कशी करते थे। मगर देखे कि आज भी पाकिस्तान के अवाम को पता है कि दूध झूठा, भुट्टो सच्चा था। दूध झूठे थे, बीबी सच बोल रही थी, और दूध झूठे हो, सदर जरदारी सच्चा। सवाल जगह जगह जाके मैं एक ही सवाल पूछता हूं, तो मैंने मोरो का आवाम से वही सवाल पूछना। मोरो वालों, मोरो वासियों, क्या तब्दीली पसंद आया? अगर नहीं तो आए मेरे साथ, अगर नहीं तो आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अगर नहीं तो आए जियालो के साथ। हम जिदोजहद कर रहे हैं, हम मैदान में निकले हैं। क्या आप कठपुतली से टकराने के लिए तैयार हो? क्या आप कठपुतली से लड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो, अगर आप हमारे साथ हो, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोकेगा। हम इमरान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो, तो तोड़ो अपना असेंबली
मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है, अवाम किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। पार्लियामान में भी हमें एतमाद ले आना चाहिए ताकि दुनिया को नजर आए, मुल्क को नजर आए कि कौन इस सिलेक्टेड कठपुतली के साथ खड़े हैं और कौन इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं। एक बार फिर मैं नौशेरों की तंजीम, मोरों की तंजीम, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने तारीखी इस्तकबाल किया है अवामी मार्च का, आप हमारे साथ चले, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत मोरों की होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी।
بلاول نثار بلاول جو میری بلاول کے چمن پیار بلاول سب تولا دعاؤں بھولن پیار بے نظیر جالا اللہ بادشاہ